Hello everyone, welcome to Prep IAS. My name is Dimple Nankani and we will continue with the series of geography lecture which is important for your upcoming prelims examination. आज का जो lecture है that is based on the geomorphic process. As the name suggests, we are talking about those processes. Geo means earth, morphic means shape. So we are talking about those processes that shapes the earth. Now we should know कि earth में है क्या और क्या क्या आपके various shapes हैं. You can study the various shapes on the surface of the crust on the basis of the first order relief feature, the second order relief feature and the third order relief feature. The first order relief feature है that is about the ocean and the continent. जो ओशन और कॉन्टिनेंट्स होते हैं उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, जो सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर होता है वो एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण या एंडोजेनिक प्रोसेस के कारण बनता है. एंडोजेनिक प्रोसेसेस यानी जिनको अंदर से अंदर से एनर्जी मिलती है. और थर्ड ऑर्डर landform are basically those landforms that have been formed because of the exogenic processes. They are external to the surface of the earth. So first order relief feature is about the continent and the ocean. The second order relief features जिनको अंदर से एनर्जी मिलती है, they are endogenic forces like the volcanic plateaus, like the volcanic mountains. You have the features like Rift Valley. We have fold mountains जिनको अंदर से एनर्जी मिलती है. So वो landforms that have been formed because of the endogenic processes are called as the second order relief feature. The third order relief features are those that have been formed because of the exogenic processes. Exogenic processes, that is, they derive the energy from the exterior, from the sun, from the atmosphere. So what are exogenic processes? The exogenic processes are those processes that shapes the landform on the earth, like आपके river valleys, glaciated valleys, we have deltas. सिर्फ erosional features नहीं but जो कि depositional features भी हैं, जैसे कि डेल्टा हो गई, रिवर वैली हो गई, आपके ग्लेशिएटेड वैलीज हो गई. तो इन सब को एनर्जी कहाँ से मिलती है? इन सबको इरोड कौन करते हैं? रिवर्स, ग्लेशियर्स, ये सब इरोड करते हैं या डिपॉजिट करते हैं. इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? एक्सटीरियर से, सन से और एटमॉस्फेयर से. तो तीन आपके और रिलीफ फीचर्स हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर ओशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट, सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर जिनको अंदर से एनर्जी मिलती है, दे आर द एंडोजेनिक फोर्सेस, and the third order relief features that are formed because of the exogenic forces. Landforms formed from the endogenic are called as second order, and the landform formed because of the exogenic processes are called as the third order relief feature. Now, as we move on, let's understand the geomorphic processes. Geomorphic processes can be of various two types. It is of basic two types: the endogenic processes and the exogenic processes. Endogenic derive their energy from the interior. They are of two types: diastrophic and sudden. धीरे 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 बनते हैं, called as diastrophic. जल्दी से बन जाते हैं, that is earthquake and volcanoes. Endo, interior, small, they are taking time to form, diastrophic. They are sudden, that is earthquake or volcano. We have already studied about diastrophic features. They are the processes that elevate the earth, that move the earth's crust due to diastrophic movements such as deforming movements like folding, faulting, warping, twisting, fracturing. So folding, warping जो ऊपर उठ गया, डाउन वार्पिंग जो नीचे चला गया, उसके कारण आपके जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं इसको हम कहते हैं डायस्ट्रोफिक लैंडफॉर्म्स. ये धीरे 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 आपका अर्थ का क्रस्ट एलिवेट हो रहा है. दे आर मूविंग, एलिवेटिंग एंड बिल्डिंग अप अर्थ क्रस्ट. दे आर स्लो एंड दे टेक thousands of years. They take thousands of years for its formation. We have already covered this. ये आपके एपिरोजेनिक या ओरोजेनिक होते हैं. एपिरोजेनिक बेसिकली जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट बिल्ड करते हैं. धीरे 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 आपका कॉन्टिनेंट बनता है. अपवर्ड मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है. बिकॉज जो आपके एपिरोजेनिक होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर एक्टिंग अलोंग दी रेडियस. whereas ओरोजेनिक दे आर एक्टिंग अलोंग दी टेंजेंशियली. कंप्रेशन भी हो सकते हैं या टेंसाइल भी हो सकते हैं. तो हम ऑलरेडी ये हम एस्पेक्ट देख चुके हैं. अब इन प्रोसेसेस को थोड़ा और समझते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक को. एंडोजेनिक वो फोर्सेस होते हैं जो अर्थ के क्रस्ट को क्या करते हैं? बनाते हैं. दे आर बिल्डिंग अप द अर्थ क्रस्ट. दे आर एलिवेटिंग द अर्थ क्रस्ट. क्रस्ट को ऊपर उठा रहे हैं. या आप दूसरा कोई क्रस्ट को ऊपर उठाएंगे तो सामने वाला नीचे गिर जाएगा. पर दे आर बिल्डिंग द अर्थ क्रस्ट, इसलिए इसको हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. ये कंटिन्यूसली एलिवेट कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, इसको लैंड बिल्डिंग फोर्सेस भी कहते हैं. Therefore also called as land building forces. Where are they deriving their energy from? They are deriving their energy from the earth's interior. इनको अंदर से एनर्जी मिलती है, such as a pre-modeled
हीट से, जो अर्थ के अंदर पहले वाली बची हुई हीट है, रेसिडुअल हीट है, या डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की रेडियो एक्टिविटी से या प्रीमॉर्डियल हीट से बनती है। ठीक है, सो ये आपके एंडोजेनिक फोर्सेस है। हम डायस्ट्रोफिज्म के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमने ऑलरेडी ये एस्पेक्ट देख लिया है डायस्ट्रोफिज्म। अगर हम सडर्न को देखें, सडर्न मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिज्म्स, इसके बारे में वी विल बी टेकिंग अप अ न्यू लेक्चर। इसके अर्थक्वेक, उसके फीचर्स, उसके लैंडफॉर्म्स एंड द वॉल्केनिज्म एंड उसके फीचर्स एंड उसके लैंडफॉर्म्स वी विल बी टेकिंग अप इन द न्यू lecture. So here the endogenic forces partially has been covered in the previous classes, and the again it will be covered volcanism, and your earthquake will be covered in the next lectures. What are we talking? We are talking about geomorphic processes. Geo means earth, morpho means shape. So those landforms that are shaping the earth's surface are called as geomorphic earth surface. They are the processes that shape the earth. They are like natural mechanism that causes the changes of the earth's surface material. So this is your endogenic processes. When I talk about exogenic processes, exo को कहाँ से एनर्जी मिलती है? बाहर से, एक्सटीरियर से, सन से, एटमॉस्फेयर से। उसमें क्या हो सकते हैं? उसमें आपकी वेदरिंग हो सकती है, मास मूवमेंट हो सकता है, या इरोजन या डिपोजिशन हो सकता है। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस लाइक दे आर इंड्यूस्ड बाय द सनलाइट, इसको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस भी कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी कहते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से। ये क्या करते हैं? ये रिलीव करते हैं वेरिएशन ऑन द surface of the earth. So whatever are the variation on the surface of the earth, they are evening out the variation on the surface of the earth. They are called, therefore also called as the land wearing processes. They are called as land wearing exercises. ये लैंड को एलिवेट नहीं कर रहे, ये वेयर आउट कर रहे हैं, लैंड को तोड़ रहे हैं, इसलिए इसको लैंड वेयरिंग प्रोसेसेस भी कहते हैं। इसमें एनर्जी कहाँ से आती है, या इसको कौन एजेंट्स होते हैं जो इसको ऐसे करते हैं? ये आपके वाटर, आइस, विंड, यू हैव द ग्राउंड वाटर्स, these are the and your rivers also that actually are trying to, they are trying to reduce the length, they are trying to reduce the variation on the surface of the earth. एनर्जी इनको एक्चुअली कहाँ से मिलती है? सनलाइट से। क्या कर, इसको एक और टर्म बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेन्यूडेशन, the denudation agent. They used to describe all the exogenic geomorphic processes like weathering, mass movement, you have features like erosion, transportation. तो ये इनके टाइप्स हैं। वेदरिंग क्या होता है, मास मूवमेंट क्या होता है, आपका इरोजन और डिपोजिशन क्या होता है, see that. So what are we referring? We are referring to the exogenic forces. The exogenic forces, they are deriving the energy from the exterior, and they are causing your land to be reduced. They are causing your land to be worn out. When I talk about the agents of denudation, they are basically removing the material, transporting them and depositing them, and therefore they are also called as geomorphic agent. वो एजेंट जो अर्थ की शेप, वो अर्थ को शेप कर रहा है, वो एजेंट जो अर्थ को शेप कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? जियोमॉर्फिक एजेंट। कौन सी हो सकते हैं? रिवर्स, विंड्स, योर ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर। ये अर्थ के आपके लैंडफॉर्म्स को शेप कर रहा है, बेयर आउट कर रहा है, इसलिए इसको एजेंट, जियोमॉर्फिक एजेंट भी कहते हैं। ऑब्वियसली मूवमेंट हमेशा कहाँ से होगा? हायर स्लोप से लोअर स्लोप की तरफ। तो दे हमेशा, दे ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर लेवल, दैट इज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर जोन्स। और कौन से एजेंट होते हैं? रिवर, वेव्स, ग्राउंड वाटर, विंड्स एंड ग्लेशियर्स। ये मेजर आपके एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन होते हैं। इसके हम लैंडफॉर्म्स भी पढ़ेंगे जो आगे लेक्चर्स में आने वाला है। अगर हम जियोमॉर्फिक एजेंट्स को देखें, जियोमॉर्फिक एजेंट्स में आपके विंड, वाटर, ये सब तो आते ही हैं। और प्रोसेसेस क्या हैं? ये एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, दे एक्चुअली ऑपरेट बाय थ्री थिंग्स। दे कैन ऑपरेट बाय वेदरिंग, दे कैन ऑपरेट बाय मास मूवमेंट, या तो दे कैन ऑपरेट बाय इरोजन और डिपोजिशन। वेदरिंग क्या होता है, मास मूवमेंट क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन क्या होता है, इसको समझेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले वेदरिंग को। वेदरिंग का क्या मतलब होता है? वेदरिंग का मतलब होता है कि जो वेदर के एलिमेंट्स हैं वो आपके कोई भी रॉक्स को फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं।
वेदर के एलिमेंट्स यानी क्लाइमेट के एलिमेंट्स, क्लाइमेट के एलिमेंट्स यानी क्या, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, ये एक्ट कर रहा है किस पे, आपके रॉक्स पे, रॉक्स पे एक्ट करके क्या कर रहा है, रॉक्स को तोड़ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। वेदरिंग बेसिकली इज अबाउट डिसइंटीग्रेशन, या तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, जोर से प्रेशर पड़ा, मैकेनिकल प्रेशर पड़ा, उसको मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन कहेंगे, टूट जाना कहेंगे। दूसरा होता है कि केमिकल प्रोसेस के कारण आपका टूट गया, तो केमिकल डिकम्पोजिशन। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन या केमिकल डिसइंटीग्रेशन बिकॉज ऑफ द एक्शंस लाइक क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट एंड वेदर के जो एजेंट्स है उनके कारण रॉक का टूट जाना। दे कैन बी ऑफ थ्री टाइप, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तीन मेजर टाइप के डिसइंटीग्रेशन हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल वेदरिंग लाइक ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स बाय द physical pressure, by the mechanical pressure, like pressure from the rocks, pressure from the animals, pressure from the plants, anything that is mechanically putting some pressure and breaking the rocks. Chemical disintegration मतलब कोई chemical change हुआ है आपका वाटर के कारण, आपके एसिड्स के कारण, आपके कार्बन एसिड, कार्बोनिक एसिड के कारण, रेन एसिड रेन के कारण, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कारण वो भी कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे, उसको हम बोलेंगे केमिकल वेदरिंग। जो वेदरिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंजेस। तो एक है मैकेनिकल वेदरिंग, एक है केमिकल वेदरिंग, और एक है आपकी 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 बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी प्लांट्स, इसके रूट्स ने या अर्थवॉर्म ने आपके रॉक्स को तोड़ दिया। वेदरिंग में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है पार्टिकल्स का। यहाँ आप देख सकते हैं, यहीं पे टूटेगा और यहीं पे रहेगा, यहीं पे टूटेगा और यहीं पे रहेगा। रॉक्स टूट तो रहा है पर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। दैट इज वेरी लिटिल और नो मोशन इज कॉज्ड। दिस इज देयरफॉर कॉल्ड एज इन सीटू वेदरिंग या ऑन साइट प्रोसेसिंग। ये जो हो चुका, वेदरिंग हो गई, उसके कारण जो मूवमेंट, उसके बाद जो मूवमेंट होता है वो उसको हम कहते हैं इरोजन। सो द मूवमेंट आफ्टर वेदरिंग इज डन इज कॉल्ड एज इरोजन। सो वेदरिंग, देयर आर थ्री टाइप्स, मैकेनिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो हम तीनों देखते हैं, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग जिसको हम फिजिकल वेदरिंग भी कहते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये प्रेशर पड़ रहा है रॉक्स पे बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। काफी सारे फैक्टर्स के कारण आपके रॉक्स पे प्रेशर पड़ सकता है और रॉक टूट जाएगा। इसको हम मैकेनिकल वेदरिंग इसलिए कहते हैं या फिजिकल वेदरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मैकेनिकल मैकेनिज्म हो रहा है प्रेशर का और कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या है ये देखते हैं, क्यों होता है ये भी देखते हैं। फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या होता है कि ग्रेविटी के कारण काफी प्रेशर आ गया, जिसको हम ओवरबर्डन प्रेशर कहते हैं। लोड आ गया तो उसके कारण क्या होगा, जैसे अब ये लोड हटेगा तो ये रॉक टूट जाएगा। ग्रेविटी के फोर्सेस के कारण, लोड के कारण, तो ये हो गया। या आपका रॉक तो दिन में ऐसे एक्सपैंड कर रहा है, जब वो गर्म हो गया, रात को ठंडा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर दिन में गर्म हुआ तो एक्सपैंड किया, फिर ठंडा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सपेंशन फोर्सेस हो रहे हैं, इसके कारण भी आपकी वेदरिंग होगी। नॉट ओनली दिस, हो सकता है जो आप इस जीआईएफ में देख रहे हैं कि रात के टाइम पे आपके यहाँ पे पानी जो था वो आइस में कन्वर्ट हो गया और उसने थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड कर लिया, दिन के टाइम वापस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर वापस एक्सपैंड हो गया, फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर वापस एक्सपैंड हो गया, वापस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके कारण भी आपकी वेदरिंग हो जाएगी। ऑल्टरनेटिव वेदरिंग एंड वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स के कारण भी आपकी वेदरिंग होती है। तो थर्मल एक्सपेंशन या आपके वाटर के कारण आपकी वेदरिंग हो सकती है। दिस इज वेदरिंग, द फिजिकल वेदरिंग। एंड आई टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल वेदरिंग का, जो आपका सॉइल बनता है ये वेदरिंग के कारण ही बनता है। सो द डेप्थ ऑफ द सॉइल डिपेंड्स ऑन द वेदरिंग। इरोजन नहीं है, इरोजन में आपका मूवमेंट होगा, वेदरिंग में आपका मूवमेंट नहीं होता है। बट इरोजन होने के पहले वेदरिंग अगर होती है तो इरोजन ज्यादा तेज होता है। इरोजन इज नॉट सिग्निफिकेंट इफ द रॉक इज नॉट वेदर। तो इरोजन और भी तेज हो जाएगा जब आपकी वेदरिंग हो जाएगी। आप देखोगे ये जो सॉइल की लेयर्स है ये डिपेंड कर रही है कि क्या टेम्परेचर है और क्या प्रेसिपिटेशन है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा है तो ज्यादा बड़ा सॉइल दिखेगा, ज्यादा आपको सॉइल का लेयर दिखेगा, क्योंकि टेम्परेचर केमिकल चेंजेस लाएगा और आपका रेनफॉल भी आपके केमिकल चेंजेस लाएगा या मैकेनिकल चेंजेस लाएगा।
So we have this as the mechanical weathering that is happening. तो आपकी कितना सॉइल का लेयर है ये वेदरिंग पे डिपेंड करता है, इरोजन कितना तेज होगा ये वेदरिंग पे डिपेंड करता है, क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है मिनरल्स का ये वेदरिंग पे डिपेंड करता है। तो ये आपके जो जब माइनिंग एरियाज होते हैं, अगर आपको पता होना चाहिए कि जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट का एक बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट इज Al2O3। अगर मुझे एल्यूमिनियम को माइन करना है तो अगर वहां पे एक वेदरिंग का प्रोसेस हो जाए तो और भी तेज जल्दी से आप वो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो मिनरल्स को निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि वेदरिंग के कारण सॉइल कैन बी इजीली वर्कड अपॉन एंड यू कैन एक्चुअली टेक आउट एल्यूमिनियम फास्ट। सो वेदरिंग ऑफ द रॉक्स actually helps, weathering of the rocks helps in increasing the concentration of ores like iron, magnesium, aluminum and copper। और वेदरिंग के कारण ही आपको पता है जब आपने सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा होगा तो सेडिमेंट्री रॉक बनने के पहले क्या होगा, वेदरिंग होगी, फिर ही तो डिकम्पोजिशन होगा तो आपका सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। तो वेदरिंग कैन हेल्प्स इन योर minerals extraction, it can help in soil formation, it can help in the extraction of the rich nutrients, it is also important for erosion, it is important for the formation of the sedimentary rocks। और हमने ये पहले ही देख लिया कि माइनिंग और क्वेरिंग में काम करना आसान हो जाता है जब वो वेदरिंग होती है। तो वेदरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, फिजिकल वेदरिंग। अगर मैं केमिकल वेदरिंग की बात करूं, केमिकल वेदरिंग यानी क्या, रॉक का टूटना, वेदरिंग यानी रॉक का टूटना छोटे हिस्सों में। क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है। तो व्हाट इज केमिकल वेदरिंग? प्रोसेस ऑफ रॉक्स एंड सॉइल डिकम्पोजिंग केमिकली। तो केमिकल एक्शन हो रहा है जिसके कारण आपका रॉक डिसॉल्व हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द केमिकल वेदरिंग। सो हियर यू कैन सी पानी गिरा, एसिड रेन आई, इसने आपके रॉक को डिसॉल्व कर दिया और आपका सिंक होल बन गया। आपकी अलग अलग टाइप के कारण आपकी वेदरिंग हो सकती है। केमिकल वेदरिंग कैन बी बिकॉज ऑफ सोल्यूशन, कैन बी बिकॉज ऑफ कार्बोनेशन, कैन बी बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन। सोल्यूशन यानी क्या, जो रॉक है वो डिसॉल्व हो गया। क्यों डिसॉल्व हो गया? क्योंकि ऐसे कुछ केमिकल्स थे जो रॉक को डिसॉल्व कर दिए, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो आप देखते हैं वो आपका सोल्यूबल होता है कार्बोनिक एसिड में। तो सोल्यूशन के कारण रॉक का डिसॉल्व हो जाना और रॉक को फ्रेगमेंट्स में बदल जाना, दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल वेदरिंग। रॉक डिसॉल्व्स इन द वाटर्स और एसिड, calcium carbonate dissolves in the carbonic acid। Carbonation is a second type of chemical weathering, the second type of chemical weathering, that is your calcium can be dissolved in carbonic acid, और कार्बोनिक एसिड बनता है उसको हम जब डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोनेशन। हाइड्रेशन क्या होता है? जब रॉक अपने अंदर वाटर ले ले, ये वाटर अपने अंदर ले लेगा तो ये रॉक बहुत लूज हो जाएगा, लूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ये डिसॉल्व नहीं हुआ है बट रॉक पानी को एब्जॉर्ब किया है, थोड़ा सा डिसॉल्व नहीं हो गया बट वो लूज हो गया और वो टूट गया। इसका एक सिंपल एग्जांपल होता है जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है, अगर वो पानी CaSO4 वो पानी को ले ले फिर वो जिप्सम में बदल जाएगा और फिर वो लूज होके टूट जाएगा। तो ये है आपकी सेकेंड टाइप ऑफ वेदरिंग, दैट इज योर केमिकल वेदरिंग एंड द टाइप्स। थर्ड टाइप ऑफ वेदरिंग इज द बायोलॉजिकल वेदरिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ये रूट्स रॉक्स को तोड़ते हुए चल रहे हैं, कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रॉक्स को तोड़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया ये सब रॉक्स को डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं और तोड़ सकते हैं। दिस लीड्स टू योर बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्यों होता है? क्योंकि काफी प्रेशर पड़ता है प्लांट रूट का। केमिकल चेंजेस भी कई हद तक होते हैं आपके अर्थवर्म्स और लाइकेंस के कारण। एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है कि लाइकेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट टू, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर दोस टू ऑर्गेनिजम। तो आप प्लीज ये कमेंट करके बताएं। तो हम वेदरिंग देख रहे थे, वेदरिंग में फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। देन लेट अस मूव टू द स्पेशल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म दैट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द वेदरिंग। इसको हम अनियन पीलिंग भी कहते हैं। ठीक है, जो एक्सफोलिएशन होता है और अनियन पीलिंग कहते हैं, ये ऐसा दिखता है। आप देखिए ये जो रॉक है ये दिन में एक्सपैंड हो रहा है क्योंकि गर्म हो जाए, रात को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि ठंडा हो रहा है, फिर दिन में गर्म हो रहा है क्योंकि एक्सपैंड
गर्म हो रहा है तो एक्सपैंड हो रहा है, रात को ठंडा हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसके कारण क्या होता है, ये जनरली डेजर्ट्स में आपको दिखता है। इसके कारण क्या होता है, जो पहली ऊपर वाली लेयर है वो क्या हो जाती है, वो गिर जाती है। फिर सेकेंड लेयर भी धीरे 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 ऐसे गिरती है। तो जैसे हम अनियन को पील करते हैं ये वैसे दिखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनियन पीलिंग। एज यू कैन सी द फर्स्ट लेयर एक्सपैंड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, expands, contracts, expands and contracts, and it is peeled out. This is called as the exfoliation or onion peeling. ठीक है। देन मूविंग ऑन, वी वर टॉकिंग अबाउट वेदरिंग। वेदरिंग के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्सोजेनिक प्रोसेस होता है आपका इरोजन, या आपका यू कैन टॉक अबाउट मास मूवमेंट। मास मूवमेंट इज अ मेजर वन, देयरफॉर वी आर रेफरिंग टू मास मूवमेंट। इफ आई टॉक अबाउट मास मूवमेंट, मास मूवमेंट यानी क्या, आपका चीजें गिर रही है नीचे, उनका मैसिव मूवमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, कोई एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन इन्वॉल्व नहीं है, ना रिवर, ना विंड, ना आपका ग्लेशियर, बट ग्रेविटी के तहत ही आपका मूवमेंट हो रहा है। इसको हम कहते हैं मास मूवमेंट। So you can see in the GIF given that there is massive movement of the features, there is massive movement of the soil, and this is not happening because there is a river or a wind or something like that. It is happening under the influence of the gravity. तो mass movement क्या हो रहा है कि आपका रॉक डेब्रिस गिर रहा है स्लोप के नीचे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है ये मूवमेंट। इट कैन बी स्लो, इट कैन बी रैपिड। वेदरिंग की जरूरत हमेशा नहीं होती है, इरोजन हमेशा नहीं चाहिए होता है, कोई एजेंट नहीं लगता है, न विंड, न ग्लेशियर, न वेव्स, बस ग्रेविटी ही काम करती है। ये आपको सबसे ज्यादा उन स्लोप्स में दिखता है जिसमें बहुत ही एडवर्स डेवलपमेंट हुआ है, जो आपकी स्लोप को बहुत स्टीप कर दिया, पहाड़ काट दिए, यहाँ से स्लोप इतना था पर उसमें आपने रोड बना दिया, आपने टनल बना दिए। तो ऐसी स्लोप जिसपे बहुत डिग्रेडेशन हुआ हुआ है उसमें आपका मास मूवमेंट काम करता है। आपका अर्थक्वेक के कारण भी होता है। मास मूवमेंट भी या तो बहुत फास्ट हो सकता है या तो बहुत स्लो हो सकता है। जब ये बहुत स्लो होता है तब इसको हम क्रीप कहते हैं, जब ये बहुत फास्ट होता है तब इसको अर्थ फ्लो, मड फ्लो, एवलांच, स्लाइड, स्लम्प, ये सब कहते हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्रीप को समझते हैं। आप क्रीप को इस GIF की मदद से समझ सकते हो। ये जो क्रीप है इसमें क्या हो रहा है, धीरे 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 आपके सेडिमेंट्स नीचे गिर रहे हैं, धीरे 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 आपके चीजें नीचे गिर रही हैं। आप यहाँ पे देखोगे, और इसके कारण क्या होता है, ये जो प्लांट्स या पोल्स जो सीधे खड़े थे, धीरे धीरे जब आपकी सॉइल बहती जा रही है, धीरे धीरे आपकी सॉइल गिरती जा रही है, तो ये जो सीधे खड़े थे प्लांट्स अब वो क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो सॉइल क्रीप क्यों होता है, ये आपके मॉडरेटली स्टीप स्लोप में होता है। बहुत स्टीप स्लोप नहीं चाहिए, थोड़ी सी ही स्टीप स्लोप चाहिए। और ये सॉइल जो है ये आपके सॉइल कवर्ड स्लोप होता है। तो स्लोप पे आपका सॉइल ऑलरेडी है, ये सॉइल धीरे 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 स्लिप करेगा, और ये मॉडरेट स्लोप है। इसको कोई पानी की जरूरत नहीं होती है, अनलाइक सॉलिफ्लक्शन। तो सॉलिफ्लक्शन में पानी की जरूरत होती है, और ये जो मूवमेंट होता है ये काफी 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 स्लो होता है और अननोटिसेबल। वेरी स्लो मूवमेंट, इट्स अ वेरी अननोटिसेबल मूवमेंट। और ये इलेक्ट्रिकल पोल्स जो होते हैं ये आपको दिखेगा कि ये टेढ़े हो जाएंगे, या आपको प्लांट दिखेंगे कि प्लांट्स आपके टेढ़े हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं, जो चीज सीधी थी वो टेढ़ी हो गई क्योंकि इस पे आपका सॉइल बह रहा था, इसको हम कहते हैं क्रीप इफेक्ट। सॉइल क्रीप क्या होता है, मास मूवमेंट का टाइप है, स्लो मास मूवमेंट का टाइप है सॉइल क्रीप। सेकेंड मूवमेंट जो आप देखेंगे जो कि स्लो होता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिफ्लक्शन। तो सॉलिफ्लक्शन क्रीप के जैसा ही होता है, बट इसमें पानी होता है, इसलिए ये सॉइल पानी की तरफ फ्लो कर रहा है। देखेंगे आप, ये जो सॉइल है इट इज फ्लोइंग लाइक अ वाटर। वाटर कैसे कर्व तरीके से फ्लो होता है, वैसे ही सॉइल भी आपका कर्व तरीके से फ्लो होता है, वैसे भी सॉइल आपका कर्व तरीके से फ्लो होता है। तो ये भी डाउन स्लोप मूवमेंट है, ग्रेजुअल मूवमेंट है। वाटर सैचुरेटेड होता है, जब वाटर पानी से भर जाता है नीचे आपका बहने लगेगा या आपका ल्यूब्रिकेट होने लगेगा। ये क्रीप का ही टाइप है, बट इसमें पानी भरा हुआ है। और ये तब होता है जब ग्राउंड वाटर का जो स्ट्रेटा है वो ऑक्यूपाइड होता है पानी से। ग्राउंड वाटर या तो बहुत क्लोज हो, आपका सॉइल के बहुत क्लोज है ग्राउंड वाटर, या एक सॉइल आपका पहले से ही फ्रोजन था। अब क्या हुआ, जब गर्मी हुई तो पानी में
बहने लगा ये सॉइल लाइक अ स्लोप। तो ग्राउंड वाटर स्ट्राटा या तो बहुत पास होना चाहिए या ये परमानेंटली फ्रोजन सॉइल होना चाहिए। ये थे दो स्लो मूवमेंट, वन वाज सॉलिफ्लक्शन एंड द अदर द प्रीवियस वन वाज क्रीप। इसके अलावा कुछ रैपिड मूवमेंट्स भी होते हैं, एज यू कैन सी इट इन दिस जीआईएफ। इतना रैपिड मूवमेंट होता है आपका, रैपिड मूवमेंट इसको हम इसलिए फॉल भी कहते हैं या फ्लो भी कहते हैं कि फ्लो एकदम फ्लो की तरह ये बहने लगा। अर्थ फ्लो तब होता है जब कोई क्ले या अर्थ मटेरियल गिरे। मड फ्लो तब होता है जब पूरी की पूरी मड गिर जाए। डेब्रिस एवलांच जनरली आपकी स्नोफॉल में होता है। सो यू कैन सी हियर जनरली ऑन द स्नोफॉल यू हैव अ डेब्रिस स्लोप। When you have a snowfall, you have a debris slope, as you can be seen from here. यहाँ से आपका जब गिरेगा या आपका आइस गिरेगा, this is called as the debris flow, the debris avalanche. Avalanche is your basic your ice. This is about your debris avalanche. This is seen in the icy region. So हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं rapid movement. मड फ्लो हो सकता है, अर्थ फ्लो हो सकता है या डेब्रिस एवलांच हो सकता है। एक मेजर आपका rapid movement is also landslides. So landslides, as you can see, the whole land is sliding. The whole land is sliding, as that can be seen from the figures here. Whole landslide is when the whole land starts falling. ये लैंडस्लाइड है। स्लम्पिंग में क्या होता है कि आपकी धीरे 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 चीजें गिर रही है और एक बैकवर्ड रोटेशन भी इन्वॉल्व है। तो व्हाट इज लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड इज रैपिड मूवमेंट। इसमें मटेरियल ड्राई होता है। ये तीन टाइप के फॉर्म हो सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है आपका स्लम्प। स्लम्प में क्या हो रहा है कि कुछ बैकवर्ड मूवमेंट भी होगा। सो स्लम्प इज वेयर देयर इज बैकवर्ड मूवमेंट ऑल्सो, एंड द अदर इज रॉक स्लाइड। रॉक स्लाइड आप यहाँ जीआईएफ से समझ सकते हैं। देखो कि कैसे एक रॉक नीचे गिरा और कैसे ये आपका एक्सीडेंट भी कॉज करता है। देयर वाज अ रॉक दैट फेल फ्रॉम अ स्लोप that also led to various accidents. So लैंडस्लाइड में आपका रॉकफॉल है और स्लम्प है और पूरा का पूरा लैंड गिर रहा है। ये ड्राई होता है। जब ये बहुत फास्ट और वाटर वाला हो तो इसको फ्लो लगा देंगे, मड फ्लो, अर्थ फ्लो, डेब्रिस फ्लो। तो ये आपके फास्ट मूवमेंट्स है, मास मूव। एक और आपका एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के कारण आपका लैंड वेयर आउट होता है, लैंड कम होता जाता है, वो है इरोजन और डिपोजिशन। एक रिवर को समझे, जब रिवर माउंटेन स्लोप से जाती है तो रिवर इसको इरोड करती जाती है और यहाँ पे डिपॉजिट करती जाती है। तो आपकी स्लोप क्या होती है? कम होती जाती है और यहाँ पे स्लोप बढ़ती, यहाँ पे आपका डिपोजिशन के कारण भी स्लोप बढ़ रहा है। तो स्लोप आपका लिटरली लेवल आउट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ erosion that is taking place on the upslope and deposition that is taking place on the downslope. So erosion is a process where the rock is being transported and it is being, there is some erosion, that is there is some scratching, there is some sloping. slope में आपकी चीजें गिर रही हैं, वो बोलते हैं erosion. ये रिवर, वाटर, विंड, वेव के कारण होता है। वेदरिंग इनहैंस कर सकता है इरोजन को, बट जरूरत नहीं है, वेदरिंग की जरूरत नहीं है, इनहैंस कर सकता है अगर हो गया तो। और डिपोजिशन भी होता है इरोजन के कारण। और क्यों होता है कि आप जैसे जैसे टॉप में जाते हैं तो वैसे वैसे आपका स्लोप आपको एनर्जी देता है। ये रिवर यहाँ से एनर्जी लेते हुए जा रहा है, इसलिए चीजें देते हुए जा रहा है और नीचे आते उसकी एनर्जी खत्म हो गई तो वो डिपॉजिट करता हुआ चलेगा। Go on deposit. So on the moderate slope, the erosional agents they have energy and they carry the material और नीचे नीचे आते हुए वो डिपोजिशन करते हैं। डिपोजिशन वही एलिमेंट्स करते हैं जो इरोजन भी करते हैं। What were we looking? We are looking at the geomorphic processes, endogenic forces and the exogenic forces. The endogenic forces can be plate movement, volcanism, tectonic, and your earthquake and the other factors. You also have डायस्ट्रोफिक मूवमेंट लाइक एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनिक, ये सब एंडो में आते हैं। और एक्सो में क्या क्या आता है? मास मूवमेंट, इरोजन एज वेल एज डिपोजिशन, एंड यू हैव द फर्स्ट वन दैट इज weathering. This was the geomorphic process. I hope you liked the video. Whatever question was asked, post your answers in the comments. Thank you for your patience. Bye bye.